Welcome back, friends. You're watching Padle Baba's series of lectures. We have already gone through 3 lectures of elasticity of demand, and I had promised that I will try to cover the topic of elasticity of demand within 4 lectures. Okay, I won't go through the rigmarole again that what we have covered in the first 3 lectures, but yes, a quick snapshot. In lecture 1 we have seen the types of elasticity of demand. In lecture 2 we have seen the types of price elasticity of demand. Again, there is a fundamental difference between these two types. When the question comes types of elasticity of demand, you are going to write about price elasticity, income elasticity and cross elasticity. When the question is about types of price elasticity of demand, you are going to remember those 5 types: perfectly inelastic, perfectly elastic, relatively inelastic, relatively elastic, unit elastic. In lecture number 3, in the previous lecture, we have seen what are the measurements of elasticity of demand. We have seen 3 methods. The first is the ratio method or the percentage method. The second was the total outlay method or the total expenditure method. And the third was the point method or the geometric method. Okay, now in this last lecture, in lecture 4 of elasticity of demand, we are going to see 2 topics. The first is determinants of demand, और तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड करता है. एंड लास्टली वी विल सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. इतना हम लोग सब स्टडी कर रहे हैं, वेदर देयर इज एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस or we are just learning it just to write it in the exam. I know most of you would be doing it that way. Okay, let's come to determinants of elasticity of demand. Again, what is elasticity? Those who have been watching my lectures regularly, they would be knowing that अंकल बहुत पकाते है ना. जब तक दिमाग का शॉर्ट नहीं हो जाता, जब तक अंकल रिपीट करते रहते हैं. I can't help it. Okay, that is my way of doing it. It's either my way or the highway. You choose your way. What's elasticity? Responsiveness. Responsiveness मतलब अगर प्राइस थोड़ा आगे पीछे हुआ तो क्वांटिटी चेंज होती है या नहीं होती है. Now, before we go to do this, that is determinants of demand, तुम ये लेकर चलो जहन में कि तुम कोई चीज खरीदने के लिए गए, फिर अगर तुम्हारे को पता चला कि उसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, तो क्या तुम वो चीज खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अगर प्राइस बढ़ने के बावजूद तुम वो चीज खरीदते हो, मतलब तुमको वो चीज की जरूरत है, और देयर इज सम अदर रीजन, इट मींस दैट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हैज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. उसके प्राइस चेंज होने के बावजूद तुमने वो चीज को खरीदा. ओके, बट तुम्हारे जहन में एक प्राइस था कि मुझे ये वॉशिंग मशीन खरीदना, इट इज कॉस्टिंग 16,200 रुपीज. ओके, यू आर अबाउट टू परचेज इट, लेकिन बाद में पता चला दैट द प्राइस हैज इंक्रीज टू 17,000. यू सेड देखते, लेट्स सी. तुमने नहीं खरीदा, तो प्राइस चेंज होने की वजह से तुमने वो चीज को नहीं खरीदा. इट मींस दैट कमोडिटी हैज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. अगर प्राइस बढ़ने के बावजूद तुम वो चीज को खरीदते हो तो इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. अगर प्राइस बढ़ने से तुम वो चीज को नहीं खरीदते हो तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ये चीज अगर तुम्हारे जहन में बैठ गई, अगर आपके एंटेने खड़े हैं, देन दिस टॉपिक वुड बी जस्ट लाइक अ वॉक इन द पार्क, just like cutting a piece of muska. Very, very simple. Okay, come on. What we are doing is, we are in lecture number 4 of 4 lectures. We are doing elasticity of demand. The topic now which we have in hand is determinants of demand. सब लोग को बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, ओके. मैं नहीं दिखूंगा चलेगा, बोर्ड दिखना चाहिए. ओके, मैं पीछे हट जाऊं, अभी दिख रहा है सबको? ओके, नाउ द फर्स्ट इज नेचर. नेचर, आई मीन द नेचर ऑफ द कमोडिटी. वो चीज तुम जो खरीदने जा रहे हो वो क्या है? इज इट अ नेसेसरी? इज इट अ कंफर्ट गुड? इज इट अ लग्जरियस गुड? ओके, यू कैन क्लासिफाई द कमोडिटीज बाय वे ऑफ नेचर इनटू नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. अगर वो चीज जरूरी है, इट्स अ नेसेसरी,
तो अगर वो चीज का प्राइस बढ़ भी गया तो भी तुम वो चीज को खरीदोगे. Then I will say that if it is a necessary, it will be having inelastic demand. But if it is a comfort or a luxurious good, it will be having a relatively elastic demand. तुम क्या सोचोगे, ठीक है थोड़े टाइम के बाद में देखते हैं, वैसे तो इतना अर्जेंट नहीं था, तो you will postpone it, you won't purchase it, right? Next, second is availability of substitutes. If substitutes are available in the market, what will happen? तुम खरीदने गए सपोज महालास्कर रोज सिरप. Okay, now this is Maharashtra rose syrup. But when I went to the market, I thought कि यार ये तो 100 रुपए का मिलता था, अभी it is costing 130 rupees. उसी जगह पे मुझे दिखा दूसरा रोज सिरप का बॉटल, लायंस रोज सिरप, which was selling at 100 rupees. What did I say? ठीक है यार, दोनों तो रोज सिरप है, दे नहीं तो मैं ये ले लेता हूँ. I did not purchase this because इसका प्राइस बढ़ गया था. Okay. So if substitutes are available in the market, then what will happen is, if availability of substitute is there, yes, then it will have relatively elastic demand. Any quantity demand it will change. But if there are no substitutes, यानी कि अगर मैं रास्पबेरी का सिरप लेने के लिए गया और वो दुकान वाले के पास या वो मार्केट के अंदर कोई दूसरा रोज सिरप का बॉटल था ही नहीं और मुझे लेना ही है, तो there are no substitutes, so it will have inelastic demand. Clear? आस्ते आस्ते क्लियर हो रहा है क्या ये? नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस. अगर वो चीज ऐसी है विच कैन बी पुट टू ओनली अ सिंगल यूज, एक ही चीज में वो काम आती है, तो इट विल बी हैविंग अ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मैंने गैस का गीजर लगा दिया. अब घर में सिलेंडर आता है सिर्फ पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का गीजर मेरे पास नहीं है, मुझे नहाना है गर्म पानी के लिए. तो अगर सिलेंडर महंगा भी हो जाता है तो मुझे उस पानी से नहाना है, एंड दैट सिलेंडर आई एम पुटिंग ओनली टू गर्मोफाई माई वाटर, तो आई विल से इट इज हैविंग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. लेकिन अगर मैं वो सिलेंडर से एक से ज्यादा काम करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, पानी भी गर्म करता हूँ, दूसरी भी चीजें करता हूँ, देन if it is multiple use it will have relatively elastic demand. मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिलेंडर से खाना भी बनाता हूं, पानी भी गर्म करता हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, अगर सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है तो एक काम करते, इंडक्शन का कुकर ले लेते, चूल्हा गैस से नहीं चलाएंगे, चूल्हा इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे. ओके, तो इट विल बी हैविंग रिलेटिवली inelastic demand. Fourth, habits. If you are habituated to a particular thing, तो उसका प्राइस बढ़ भी जाता है, तो it will be having a relatively inelastic demand. For example, I say that let's say I'm addicted to drinking tea. तो अगर चाय का प्राइस बढ़ गया, दूध का प्राइस बढ़ गया, चाय का पत्ती का प्राइस बढ़ गया, लेकिन मुझे चाय तो चाहिए. I am sorry, any of you are inviting me, you have to give me a big mug of tea because I am addicted to tea. So if I am addicted to tea, habituated to drinking it, it will be having a relatively inelastic demand. उसके प्राइस का उसके डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. This applies to other habits also like tobacco, like alcohol, etc. Coming to the fifth point, that is durability. If the commodity what I am intending to buy is a durable good, like washing machine, like refrigerator, then it will be having a relatively elastic demand. But if it is a perishable commodity like vegetables or milk, it will be having an inelastic demand. The sixth point is complementary goods. What do you mean by complementary goods? More than one good, more than one commodity is demanded to satisfy a single want. It is called as a complementary good. ठीक है, तुम्हारा अपन ने क्या क्या एग्जाम्पल लिए थे. लेट्स से पेट्रोल एंड कार, दे आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पेट्रोल कार साथ साथ में चलते हैं. अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी खरीद लिया हूं, ठीक है, मुझे गाड़ी चलाना है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ भी जाता है, देन ऑल्सो आई विल हैव टू परचेज पेट्रोल बिकॉज माई कार इज रनिंग ऑन पेट्रोल. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वुड बी हैविंग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. मैं वो चीज खरीदूंगा. पेट्रोल का प्राइस 70 से 75 हो जाता है. इफ आई एम गोइंग टू ऑफिस इन अ कार, I have to go by car, my car runs on petrol, I will purchase petrol.
Next is income. If a person is having a very high income, he is earning in lakhs, तो अगर कोई चीज का प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाता है तो उसको फर्क पड़ेगा नहीं. तो in case of high income, the demand would be relatively inelastic. Next, urgency. अगर वो चीज ऐसी है कि तुम्हें उसे अर्जेंटली खरीदना है, you cannot postpone. It is of utmost importance. Like what? Like medicines. तो अगर दुकान वाला 2 पैसे ज्यादा भी तुम्हारे से मांग रहा है तो भी तुम वो चीज खरीदोगे. इफ इट इज अर्जेंट इट विल बी हैविंग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. लेकिन अगर वो चीज ऐसी है कि दैट यू कैन पोस्टपोन, आज गए थोड़ा महंगा था, ठीक है, तुम बोले मेरे को उतना अर्जेंट नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, यू कैन पोस्टपोन, so it will be having a relatively elastic demand. And the last point is the time period. In the short run, in the short period, the commodities would be having a relatively inelastic demand because तुम्हें वो चीज खरीदना है. But in the long run, you can adjust. ठीक है? Therefore, the commodities would be having a relatively elastic demand. अगर प्राइस ज्यादा है तो मुझसे नहीं खरीदोगे because we are talking about long run. Let's say 1 year period of time, 3 years period of time, you can postpone your purchase. Okay, तो you will say ठीक है मैं अभी नहीं लेता, I'll purchase it later. So it will be having relatively elastic demand. So we have seen 9 determinants of elasticity of demand: the nature, the availability of substitute, number of uses, habits, durability, complementary goods, income of the consumer, urgency of the need, and the time period. If you want, you can take a snapshot of this, study it accordingly. लेकिन इससे बेहतर तरीके से तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. I would be more than happy if you supplement this with your textbook. Now let us quickly come to the importance of the concept of elasticity of demand. The last and the most important topic in the chapter of elasticity of demand is the importance. खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, ठीक है. इतना सब करने के बाद what is the actual importance of the concept of elasticity of demand? Now I would request you, for all of you who want to really understand this, please watch this. If not, तुम्हारे टेक्स्ट बुक जो 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी बहुत अच्छी से दिया हुआ है. यू कैन जस्ट गो एंड आरपी इट. यू नो व्हाट्स आरपी? रट्टू पोपट. ठीक है, जस्ट गो रटोफाई इट, यू विल गेट योर मार्क्स. बट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ये मैं क्या लिखा हूं और एक्चुअली कैसे बेनिफिट होता है, देन पुट योर एंटेना ऑन and listen carefully. The first thing, producer. Considering me to be a producer, ठीक है, I am producing a particular commodity. तो मुझे कैसी चीज खरीदना चाहिए, मुझे कैसी चीज बनाना चाहिए. Why I say banana? Because here I am considering myself to be a producer, बनाने वाला. If I am manufacturing goods which have an inelastic demand, यानी कि अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी कंज्यूमर खरीदेगा. ठीक है, आई हैव टू सी कि मैं जो चीज बना रहा हूं उसका डिमांड कैसा है. अगर मैं जो चीज बना रहा हूं वो प्रोडक्ट का डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब दूसरा कोई भी वैसी चीज बनाता नहीं है, अगर कंज्यूमर को वो चीज चाहिए तो उसे मेरे पास ही आना होगा, तो आई कैन इंक्रीज द प्राइस, तो भी कंज्यूमर मेरे पास आके वो चीज लेगा. लेकिन अगर मैं चीज ऐसी बना रहा हूं which has an elastic demand, like for example mala syrup, it is having an elastic demand. Okay, we saw in the previous thing, elastic demand मतलब दूसरे सब्स्टिट्यूट उसके अवेलेबल है. तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा बेचूं तो आई विल हैव टू प्राइस इट अ लिटिल लेस देन द सब्स्टिट्यूट्स सो दैट मेरा माल ज्यादा बिके. ओके, that is the importance of the concept of elasticity of demand to the producer. For example, समझो शेतकरी हूं मैं, okay, and I make the best hapus aam in the world. I can price it high because my mangoes have inelastic demand. I can price them the way I like. लेकिन अगर मेरा आम कोई ordinary variety का है, my soil is not so much fertile, I'll have to price it on the lower side. Then only my product will be sold in the market. Got it? That's the importance to the producer. Next is importance to the government. Government, when it frames the taxation policies,
the government will tax the products which have inelastic demand more than the products which have elastic demand. क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई इलास्टिक डिमांड के प्रोडक्ट को टैक्स करती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी वेंट टू बाय द ऑयल, मतलब तेल लगाने की, फेल हो गई. तो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स व्हिच हैव इनइलास्टिक डिमांड. लाइक व्हाट? दोज प्रोडक्ट्स टू व्हिच द कंज्यूमर्स आर एडिक्टेड. वो चीजें जो कंज्यूमर खरीदेगा, चाहे उसका प्राइस बढ़ भी जाए तो भी कंज्यूमर खरीदेगा. जैसे लिकर, जैसे अल्कोहल. पीपल हु आर एडिक्टेड, दे वांट टू हैव अल्कोहल, therefore the government taxes alcohol very much. But even though the government is taxing alcohol, the price of liquor goes up, still the person buys. That is how the concept of elasticity of demand is useful to the government. The government will tax those products which have inelastic demand. Third, factor pricing. What is factor pricing? What are the factors of production? Land, labor, capital and enterprise. Okay, अभी suppose we take an example of a person, a laborer. अगर वो लेबरर ऐसा काम करता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मतलब that laborer is having inelastic demand. Okay, तो he can command a higher wage. Like for example, let's say there is a painter और वो बहुत अच्छी से टेक्सचर पेंट करता है जो दूसरा कोई पेंटर नहीं कर सकता है, तो he can command a better wage as compared to the other laborers. Why? Because वो जो कर रहा है it is having an inelastic demand. अगर तुम्हारे को उसका हेल्प चाहिए या उसकी पेंटिंग चाहिए, उसकी डिजाइन चाहिए, तो तुम्हारे को उसका प्राइस अदा करना पड़ेगा. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. Then next, the very important thing is, a very relevant thing is foreign trade. Now what do we mean by foreign trade? Foreign trade comprises of import trade and export trade. Import trade and export trade. This I will explain in detail after we finish this. After this is public utilities. Now, what do you mean by public utilities? Public utility is something which is used by the public at large. मतलब ज्यादातर लोग उस चीज का इस्तेमाल करते हैं. The best example is of railways in India, and particularly the local railways in Bombay. Okay, the railways is supposed to be the lifeline, the bloodline, the vein, the artery of Bombay. बहुत ही cheap है. If you want to travel from one corner of Bombay to the other in the cheapest mode possible, you have to travel by railways. Okay, so can I say that now railways have inelastic demand? Yes. ठीक है, लेकिन अगर रेलवेज को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देवे तो क्या होगा? सपोज आई फॉर्म अ कंपनी, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया. आई डोंट वांट टू बी, बट सपोज, एंड आई नो द गवर्नमेंट, आई नो द प्रेसिडेंट, आई नो द प्राइम मिनिस्टर, आई नो द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, एंड दे आर विलिंग टू गिव मी द हैंडल ऑफ द रेलवे मशीन. तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि लोग रेलवे से ट्रेवल करते हैं और करते रहेंगे. अगर उसकी टिकट में डबल भी कर दूं तो भी लोग ट्रेवल करेंगे. तो व्हाट विल आई डू? मैं प्राइवेट सेक्टर का हूं, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं टिकट डबल कर दूंगा. नुकसान किसका होगा? पब्लिक का होगा. तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है. देयरफॉर ये जो पब्लिक यूटिलिटीज होती है, जैसे कि रेलवेज, ये गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज दैट दिस पब्लिक यूटिलिटी इज हैविंग इनइलास्टिक डिमांड. और अगर मैं ये हम लोग प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो द कंज्यूमर वुड बी एक्सप्लॉइटेड. ठीक है. लास्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज रॉन्ग. It should not come in importance of elasticity of demand. It should come in their determinants of elasticity of demand. इसके पहले जो हमने 9 determinants देखे थे, याद है? Availability of substitutes, complementary goods, durability, urgency, time period, number of uses. उसके अंदर ये आना चाहिए. Anyway, I'll explain it and then you can decide. You can speak to your relevant teacher and find out. It is my personal opinion. It is the opinion of Sadi uncle on Padle Baba.
Proportion of expenditure means that if I am spending a very small proportion of my expenditure on that particular product, it would be having inelastic demand. If I am spending a very small proportion of my expenditure on a particular product, then it will be having inelastic demand. मतलब अगर उसका प्राइस बढ़ भी गया तो भी मैं वो चीज खरीद लूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा मेरा एक्सपेंडिचर वो चीज को खरीदने में जाता है. द बेस्ट एग्जांपल इज न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर कॉस्ट हाउ मच? 1 रुपीज 60 पैसा, 2 रुपीज 70 पैसा, 3 रुपीज 30 पैसा, मैक्सिमम 5 रुपीज पर डे. ओके, मेरा दिन का एक्सपेंडिचर कितना है? लेट्स से 500 एंड आई एम स्पेंडिंग हाउ मच? 5 रुपीज 1%. तो अगर वो 5 रुपए का 5 रुपया 20 पैसा हो जाएगा तो मैं बोलूंगा, झगड़ा करूंगा मैं, ऐसा कैसा? नो, आई विल गो परचेज. ठीक है. व्हाई? बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर इज वेरी स्मॉल. ठीक है. तो दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट दिस पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, would be better if it is taken in determinants of demand and not in importance of elasticity of demand. So as far as our lecture is concerned, I will meatify this and you can consider this point along with the point in determinants of demand, या जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, factors influencing elasticity of demand. Now coming to foreign trade, we have already seen how the concept of elasticity of demand is useful to the producer. अगर वो इनइलास्टिक गुड्स प्रोड्यूस करता है तो प्रॉफिट में रहेगा. अगर इलास्टिक गुड प्रोड्यूस करता है तो उसको भाव कम करेगा तो ही बिकेगा. हाउ इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर कोई चीज पर टैक्स लगाना चाहती है तो अगर वो गुड इनइलास्टिक प्रोडक्ट है तो ही गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा पाएंगी, तो ही लोग खरीदेंगे. फैक्टर प्राइसिंग. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल लेबर. अगर वो लेबर ऐसा काम कर रहा है, दूसरा कोई लेबर नहीं कर सकता है, तो वो अपनी खुद की सैलरी वेजेस बढ़ा सकता है. फिफ्थ पॉइंट वाज पब्लिक यूटिलिटीज. फॉर एग्जांपल रेलवेज विच हैव इनइलास्टिक डिमांड विच आर यूज्ड बाय, ज्यादा करके जनता उसका इस्तेमाल करती है. इसके लिए गवर्नमेंट, इसके लिए सरकार ऐसी यूटिलिटीज को अपने पास रखती है. फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर्स. ठीक है, दे आर नेशनल है. सपोज प्राइवेट कर दे तो 1000 रुपए का सिलेंडर 3000 हो जाएगा. आपको लेना है, घर में चूल्हा जलाना है, सिलेंडर तो लगेगा आपको. नाउ कमिंग टू फॉरेन ट्रेड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल मिटोफाई दिस. वी विल कीप ओनली फॉरेन ट्रेड एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू फॉरेन ट्रेड. Lastly, now we will see how the concept of elasticity of demand is useful in foreign trade. ठीक है. Foreign trade comprises of import trade and export trade. What are we doing? We are doing the concept of importance of elasticity of demand. We have seen how it is useful to the producer. We have seen how it is useful to the government. We have seen how it is useful for public utilities, for factor pricing. Now we will see how the concept of elasticity of demand is useful in foreign trade. Foreign trade क्या है? The trade between two countries is considered to be foreign trade. Okay, the trade between two states is not foreign trade, that is domestic trade. But if India is trading with America, if China is trading with Korea or whatever, two different countries are involved, then I would say it is foreign trade. Foreign trade comprises of export or import. When I say export, मेरे गुड्स बाहर जा रहे, मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मतलब मैं माल भेजता हूं जिसके एवज में मेरे को वो गवर्नमेंट पैसा देती है. द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ इंडियन स्पाइसेस. ठीक है. स्पाइसेस शुरू से लेके आज तक, यू मस्ट हैव रिफर्ड टू योर हिस्ट्री ऑल्सो. जब ब्रिटिशर्स आए थे वो इंडिया से क्या लेके जाते थे? स्पाइसेस लेके जाते थे. वो लोग के यहाँ मिर्च मसाला नहीं था, अभी भी नहीं है, राइट? तो आई एम सेंडिंग व्हाट? स्पाइसेस. और उसके एवज में मैं गुड्स क्या भेज रहा हूं? मैं यहाँ पे स्पाइसेस भेज रहा हूं. स्पाइसेस आर गोइंग आउट. उसके एवज में मनी इज कमिंग इन. ठीक है ना? एक्सपोर्ट ट्रेड वही होता है.
इंपोर्ट में क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम इंपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम कंट्री लाइक से यूएसए, आई एम इंपोर्टिंग फाइटर पायलट्स फ्रॉम यूएसए, तो मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स आर कमिंग इन, पैसा इज गोइंग आउट, यहां पे क्या था, गुड्स आर गोइंग आउट, पैसा इज कमिंग इन। नाउ यू थिंक एंड टेल मी, अब तक जितना आप लोग सीखे हो, समझे हो, चौथे लेक्चर में हम लोग है, कब कोई भी गवर्नमेंट प्रॉफिट करेगी? आई हैव गिवन यू टू सिनेरियोस, एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट। एज फार एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंसर्न, कोई भी गवर्नमेंट का फॉरेन ट्रेड कब प्रॉफिटेबल होगा? थिंक फास्ट, थिंक एंड टेल मी। ओके, व्हाट इज इनइलास्टिक? इनइलास्टिक मतलब अगर मैं वो चीज का प्राइस बढ़ा भी दूं तो भी तुम वो चीज मेरे पास से खरीदोगे, और इलास्टिक मतलब अगर मैं वो चीज का प्राइस बढ़ा दूं तो तुम मेरे पास से वो चीज नहीं खरीदोगे। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सेलिंग स्पाइसेस, स्पाइसेस आर गोइंग आउट, और उसके बदले में पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट आई एम एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस टू अ कंट्री, लेट्स से क्या बोलेंगे, हॉलैंड। हॉलैंड में स्पाइसेस, मिर्ची, मसाला, काली मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला कुछ नहीं मिलता है, एंड दे हैव टू डिपेंड अपॉन इंडिया। अगर वो लोग को लेने गया तो वो लोग को इंडिया के पास से ही लेना होगा, और वो लोग को लेना ही है, तो आई विल से दैट दीज स्पाइसेस आर enjoying in elastic demand in the foreign country, that is Holland. If the goods which I am exporting have an inelastic demand in the foreign country, then I can increase the price of the goods. और ये वाले बंदे लोग यहां पर उनको खरीदना ही है तो वो लोग खरीदेंगे, then my profit will go up. My profit will go up. Is this clear? जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, आई शुड एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट्स विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड इन द फॉरेन कंट्री, then only my profit will go up. What about import? Again, inelastic मतलब क्या? अगर मैं प्राइस बढ़ा दिया तो भी सामने वाला माल खरीदेगा। इलास्टिक यानी क्या? अगर मैं प्राइस बढ़ा दिया तो सामने वाला माल नहीं खरीदेगा, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिके तो आई हैव टू लोअर द प्राइस ऑफ द गुड, और अगर इफ आई लोअर द प्राइस ऑफ द गुड तो मेरी प्रॉफिट भी कॉन्सिक्वेंटली कम हो जाएंगी। नाउ दिस इज क्लियर। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में क्या होना चाहिए? द गुड्स विच आई एम इंपोर्टिंग शुड हैव एन इलास्टिक डिमांड। The goods which I am exporting should have an inelastic demand. The goods which I am importing, जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस इक्विपमेंट मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं दे शुड हैव एन इलास्टिक डिमांड इन माय कंट्री, दैट इज इंडिया। अगर यूएसए वाले बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे को डिफेंस फाइटर एयरक्राफ्ट इतने $1 मिलियन में देंगे, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरे कंट्री से ले लेता हूं, या मैं खुद बना लेता हूं, मेरा नासा है, इज वेल इक्विप्ड, मेरा इसरो डिपार्टमेंट है, इट इज वेल इक्विप्ड, तुम्हारा नासा है तो मेरा इसरो है। ओके, तो अगर मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं वो इलास्टिक है तो क्या होगा, आई कैन बार्गेन। तो अगर यूएसए को अपना माल मुझे बेचना है तो यूएसए क्या करेगा, इट विल लोअर द प्राइस ऑफ द गुड, तो मैं वो चीज खरीदूंगा, बिकॉज दिस इक्विपमेंट हैज एन इलास्टिक डिमांड इन इंडिया। अगर ऐसा नहीं होता और मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं वो मेरे को यूएसए से लेना ही लेना है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मुझे कोई और कंट्री नहीं दे रही है और मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है दुश्मनों से लड़ने के लिए, एंड आई हैव टू परचेज इट। तो यूएसए भी समझता है कि इंडिया के लिए वो इनइलास्टिक डिमांड हो गया है, तो यूएसए क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, तो मुझे वो चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, a country will benefit if what it is exporting, those products have an inelastic demand, and what it is importing, those products have an
elastic demand. Okay, you can take a snapshot of this because I'm sure you are not going to find out this in any other book. Again, so much detail is not required. This was just to conceptually आप लोग को clear हो जावे so that you can refer to the textbooks you will follow. With this, we come to the end of the series of our lectures on elasticity of demand. We have covered elasticity of demand in 4 chapters. Again, I won't go through all this, but not mota word to word as far as your HSC Commerce 12th Standard Economics textbook is concerned. We have covered all the things. Okay. Now, as far as the last question is concerned, which I had given in my previous lecture, that is 5 plus 5 plus 5 is equal to 550. This question still stands, and I would request all of you that after watching these lectures on elasticity of demand, please do watch my lectures on supply, and in one of those lectures I would give you the answer of this. What was the question? Correct this equation with a single stroke. We are there on Instagram also on Padle Baba. We are there on YouTube also on Padle Baba. Please watch, like, subscribe and comment. And for those of you who don't have my number so far, please take it. It is 9011320004. This is strictly on WhatsApp. I look forward for your constructive criticism. If you want me to change, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा सुधार लाना है, it is ultimately you who is going to benefit. I am not doing it in a professional capacity. I am doing it because my son is also in 12th standard. He only said, Papa, तुम मुझे पढ़ाते हो. Why don't we put it something on a video? Therefore, we see we have got these 2 small whiteboards and we are putting it to optimum use and trying to benefit you, the end user. I hope you like it, and even if you don't like it, please do like it. Keep on watching Padle Baba.